My dear automotive service technicians, a very good morning to all of you. We have completed first session of Unit 5, that is air pollution and its control. Today we will be doing its exercises. It starts with fill in the blanks. The first part is the need of the hour is to check the dash and dash of our precious natural resources. जैसा कि हमने पढ़ा कि अभी एयर पोल्यूशन बहुत बढ़ रहा है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन बहुत बढ़ रहा है और इससे सीधा असर हमारे नेचुरल रिसोर्सेज पे जा रहा है, वो डिप्लीट हो रहे हैं, वो खत्म हो रहे हैं। तो अभी जो नीड ऑफ द आवर अभी जो हमें चाहिए वो ये कि हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को बचाएं, उनकी डिप्लीशन को खत्म होने से बचाएं। सो द आंसर टू दिस ब्लैंक इज द नीड ऑफ द आवर इज टू चेक द degradation and depletion of our natural resources. The answer is degradation and depletion of our natural resources. Second part is, in order to control environmental pollution, the Government of India has passed the Dash Act. In 1986 में कौन सा एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पास किया था जिससे एनवायरमेंटल पोल्यूशन कंट्रोल पे जो जोर दिया गया था कि कैसे हम एनवायरमेंटल पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकें। एक एक्ट पास किया गया था गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से 1986 में। उस एक्ट का नाम है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। So the answer here is Government of India has passed the Environment Protection Act to protect and improve the quality of our environment, because air, water and soil, all these are the main constituents of our environment. तो यहाँ पे आपका आंसर है, in order to control environmental pollution, the Government of India has passed the Environment Protection Act in 1986 to protect and improve the quality of our environment. Third part is, air pollutants deleteriously affect the dash system of humans and of animals. जैसे कि आपने पढ़ा, एयर पोल्यूटेंट्स सीधा असर हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पे करते हैं, बिकॉज जब हम डर्टी एयर, स्मोकी एयर को ब्रीद इन करते हैं तो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम अफेक्ट हो जाता है। सो द आंसर हियर इज द एयर पोल्यूटेंट्स deleteriously affect the respiratory system of humans and of animals. The full form of CNG is, CNG जो प्रेफर किया गया है to be used in our vehicles as a fuel, जिसे पेट्रोल और डीजल से ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं to be used in vehicles as a fuel because इससे कम पोल्यूशन होता है। तो CNG का फुल फॉर्म है compressed natural gas. Automobiles are a major dash of atmospheric pollution. जैसे कि हमने पढ़ा, ऑटोमोबाइल्स एक मेजर कॉज है एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन का। सो द आंसर हियर इज ऑटोमोबाइल्स आर अ मेजर कॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन। द नेक्स्ट पार्ट इज यूरो 2 norms, for example, stipulate that sulfur be controlled at dash parts per million in diesel and dash parts per million in petrol. ये कुछ स्टैंडर्ड्स प्रिस्क्राइब किए गए हैं बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर यूरो 2 नॉर्म्स। तो उसमें देखा है कि डीजल में और पेट्रोल में कितना सल्फर होना चाहिए, कितना परसेंटेज, कितना पार्ट्स पर मिलियन होना चाहिए। तो उसके लिए कुछ वैल्यूज दिए गए हैं जो आपको इन ब्लैंक्स पे फिल करने हैं। स्टिपुलेट दैट सल्फर बी कंट्रोल्ड एट, तो सल्फर के लिए जो वैल्यू हमने पढ़ा दैट इज 350 पार्ट्स पर मिलियन इन डीजल, एंड पेट्रोल में कितना सल्फर होना चाहिए, इट शुड बी 150 parts per million in petrol. So the answer to these blanks is Euro 2 norms, for example, stipulate that sulfur be controlled at 350 parts per million in diesel and 150 parts per million in petrol. So the answer to these blanks is 350 and 150 respectively. So this was about the fill in the blanks portion. Next is your multiple choice questions. So multiple choice में it starts with, first is the latest version of emission standards to be followed in India is, your options are BS4, BS3, BS2 and Euro 3. BS stands for भारत स्टैंडर्ड. ये हमने पढ़ा कि अभी जो व्हीकल्स में लिखा गया होता है दैट इज BS, हम हर एक देखता है इसमें BS स्टैंडर्ड लिखा है या नहीं.
तो जो लेटेस्ट वर्जन BS स्टैंडर्ड्स का है दैट इज BS4. So the latest version of emission standards to be followed in India is BS4. A substantial fall of which gases level was found in Delhi between 1997 and 2005 due to CNG. ये भी हमने पढ़ा था जब हमने केस स्टडी दिल्ली का देखा, उसमें क्या क्या स्टेप्स लिए गए थे गवर्नमेंट की तरफ से. जब CNG यूज हुआ था तो क्या क्या चेंजेस आई थी गैसेस लेवल में, पॉइजनस गैसेस जो बाहर आते हैं वो कितना कम हो गए थे, और वो कौन से मेन गैसेस थे, वो थे कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड. CO2 and SO2 is the correct option to this question. An undesirable change in physical, chemical or biological characteristics of air, land, water or soil is known as population, pollution, propulsion, none of the above. एनवायरनमेंट के किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंट में, जैसे कि एयर है, लैंड है, वाटर है या सॉइल है, कोई भी अनडिजायरेबल चेंज अगर होती है, अनइनवाइटेड चेंज अगर होती है फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में, तो उसे हम पोल्यूशन कहते हैं. द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज पार्ट बी, दैट इज पोल्यूशन. योर नेक्स्ट पार्ट इज the government of Delhi decided to convert all the buses to CNG by the end of the year 2002. ईयर 2002 के एंड पे गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली ने ये डिसाइड किया कि हर एक बस में जो फ्यूल यूज होता है वो हम पेट्रोल और डीजल की जगह CNG को रिप्लेस करेंगे उससे, ताकि पोल्यूशन कम हो. और ये डिसीजन लिया गया था बाय द एंड ऑफ द ईयर 2002. सो द करेक्ट ऑप्शन इज 2002, पार्ट C. So this is all about the session first. With this we complete our session. Thank you, students.